नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। जो खबर पिछले 8 दिन से लगातार तमिलनाडु को गर्म कर रही थी, आखिर वो अपने एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी ने के अन्नामलाई का पार्टी के सदस्यता से और बाकी सभी पदों से इस्तीफा स्वीकार कर लिया। ये अरुण सिंह है, जनरल सेक्रेटरी है, हेडक्वार्टर्स इंचार्ज। उनके हस्ताक्षर से ये पत्र आप देख लीजिए पहले। द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी ऑनरेबल श्री नितिन नवीन has accepted the resignation submitted by the Tamil Nadu ex-state president Sri K. Annamalai from the primary membership of the party। बहुत दिन तक उनको राज्यसभा से लेकर तमाम दिए जा रहे थे। इसी में फिर अब कई लोग इसको कई एंगल से देखते हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और उन्होंने कहा कि मैं अन्नामलाई को शुभकामनाएं देता हूं। ये दिग्विजय सिंह ने कहा। दूसरी तरफ वाइको एक नाम है, दुराई वाइको, एमडीएम के पार्टी के बड़े एग्रेसिव नेता माने जाते हैं। उनका भी एक वक्तव्य आया है, वो भी आप देख सकते हैं। प्रेस पीटीआई ने ट्वीट किया है, I hope Annamalai goes with the secular and the developmental politics, says DMK leader दुराई वाइको। और दुराई वाइको का वीडियो अटैच है इसमें, ये भी आप देख सकते हैं। Today, in fact, yesterday was his birthday. Suppose I wish Annamalai happy, healthy, probably career ahead. And today, there's an announcement that he has officially resigned from BJP, and he's probably going to start a new innings, probably a party of his own. I wish my brother Annamalai, all success, and I hope that he goes by the Dravidian ideology, that is secular politics. I always believe in politics which is for the development of the nation, for the state, and which is in Tamil we call it munneta arasial. In English we call it developmental politics, which is not divisive politics. And I hope Annamalai, my brother Annamalai, he does have a secular ideology, and he works for the the rights of the Tamil people. And I wish him all success. Do you think there is a scope for a new party in Tamil Nadu? So we just saw TVK forming government and the other party is coming. Or do you think there is scope still, sir? Of course, as far as you're determined, you're focused, you work hard, and you're true to what you say. I think the people will believe in you. And as far as I see, there's more space, because we know TVK was a fledgling party, and in the very first election, they have come to power, and this gives hope. Another thing is, which I always say is, now I'm being apolitical over here. And this victory by TVK, it is totally gone against the usual formulas. That is about caste politics, divisive politics, and probably using the money as a major thing during election, especially Tamil Nadu. He has overthrown all these formulas and he has formed the government over there. And I hope every party we do a self-introspection, and probably we should get rid of divisive politics as well as corruption, in fact. And for example, for an MLA, for a person to become an MLA in Tamil Nadu, it is nothing minimum of, I think, around 10 crores or whatever. And for an MP, not less than 30-40 crores. This was the formula. But this, now TVK has broken that. And I hope, my brother Annamalai also, he goes by the development politics. And we always probably this is a new beginning, I suppose, for Tamil Nadu politics. Not only for TVK, but TVK, as in fact, when they have proved that people would follow you and they would support you when you are true to your heart and you really work for the welfare of the society or whatever. I wish my brother Annamalai all the luck. दूसरी तरफ कांग्रेस के चिदंबरम ने, कीर्ति चिदंबरम ने भी एक वक्तव्य दिया, जो पीटीआई ने उसको ट्वीट किया है। ऑन अन्नामलाइज रिजिग्नेशन फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी मेंबरशिप, कांग्रेस एमपी कीर्ति चिदंबरम सेज, I think Mr. Annamalai realized what we all know much earlier. I have always said the BJP does not understand Tamil Nadu culture and politically, and it is very limited presence in the Tamil Nadu. After 6 years, he has realized that he will not be able to move ahead politically by being a part of BJP. So he has to break free and perhaps start an organization of his own.
This is a natural culmination of event because Mr. Annamalai is not a RSS product. Neither he is a Swayamsevak nor a man from the Sangha Parivar organizations. He was civil servant who entered politics after serving few decades in the civil services, was looking around at various political parties. At that time, as he also alluded to in his statement, he decided to join BJP. His experiment with the BJP has now come to a natural end because he has come to the conclusion which we all knew from the beginning that BJP will have very limited purchase and very limited acceptance in Tamil Nadu. In order to move further, the Tamil Nadu politics, this is what basically moved by मिस्टर अन्नामलाई और चिदम्बरम का वक्तव्य भी आप देख सकते हैं वीडियो में. I think Mr. Annamalai has realized this, what we all knew much earlier. I've always said that the BJP does not understand Tamil Nadu culturally and politically, and it has very limited purchase in Tamil Nadu. And he, after 6 years, has realized it, that he will not be able to move ahead politically by being part of the BJP. So he has to break free and start perhaps an organization of his own. This is a natural culmination of events because Mr. Annamalai is not a RSS product, neither is he a Swayamsevak or a man from the Sangh Parivar organizations. He was a civil servant who entered politics after serving a dozen years in the civil service, as a police service. And he was looking around for various political parties. And at that time, I think he's also alluded to that in his statement. And then he decided to join the BJP. And his experiment with the BJP has come to a natural end because he has come to the conclusion which we all knew from the beginning, that the BJP will have very, very limited purchase, very limited acceptance in Tamil Nadu. And in order to further move ahead in Tamil Nadu politics, he needed to break from that. लेकिन इसमें कई चीजें हैं. जब उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पार्टी पे इस्तीफा और नई राजनीतिक सफर शुरू करने का ऐलान किया, तो उनका जो वक्तव्य है उसमें कई चीजें सामने आती हैं. के अन्नामलाई ने बीजेपी के इस्तीफा देने के बाद एक नए राजनीतिक सफर का ऐलान कर दिया. उन्होंने जनता से इस अभियान में साथ देने की अपील की. तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के इस्तीफा देने के बाद एक राजनीतिक सफर की शुरुआत का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि वह एक नए राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और जनता से इस अभियान की साथ देने की अपील कर रहे हैं. अन्नामलाई ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए बताया कि उन्होंने 2009 में डीडीएमके के साथ इंटर्नशिप की थी. साल 2020 में बीजेपी में शामिल हुए और अब वह एक नई राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहे हैं. उन्होंने खुलासा किया कि 24 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल होने से पहले अभिनेता रजनीकांत ने उन्हें फोन करके संभावित राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था. लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष को पहले ही मैं वचन दे चुका था, इसलिए मैंने रजनीकांत जी के प्रस्ताव को मना किया, मतलब उनको मना किया कि मैं बीजेपी ही जाऊंगा. अन्नामलाई ने कहा कि उनका मकसद जमीन से जुड़ी स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति की शुरुआत करना है. उन्होंने बताया कि उनके लिए राजनीतिक आंदोलन का नाम वी द लीडर होगा. इसके साथ ही एपीजे अब्दुल कलाम एथिक्स इन पॉलिटिक्स नाम की संस्था के माध्यम से इस आंदोलन से जुड़ने वाले सदस्यों को राजनीतिक और नेतृत्व की ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जब उनकी राजनीतिक पार्टी का गठन होगा तब उसमें टर्म लिमिट लागू की जाएगी ताकि परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति पर प्रभावी अंकुश रखा जा सकते हैं. अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मन में पीएम मोदी के लिए हमेशा आदर रहेगा. हालांकि यदि किसी मुद्दे पर बीजेपी और उनके विचार में मतभेद होगा तो वह पूरी उसे गंभीरता से और स्पष्टता के साथ उठाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि 3-3 भाषा नीति का उन्होंने बीजेपी के भीतर रहते हुए भी विरोध किया. इस्तीफे के बारे में बोलते हुए अन्नामलाई ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पार्टी में महसूस की गई कमियों और अपने विचारों को स्पष्ट रूपरेखा
स्पष्ट रूप से रखा और इसके बाद इस्तीफा दिया। अन्नामलाई ने कहा कि उन लोगों में से मैं नहीं हूं जो दूर बैठकर इस्तीफा भेजते हैं, बल्कि उन्होंने पार्टी के नेतृत्व के सामने अपनी बात रखकर सम्मानजनक तरीके से अलग होने का फैसला किया। अब इसमें एक बात जो है वो बार-बार जो कह रहे हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी के प्रति अ, बड़ा प्रेम है, मतलब मेरा आदर है। अब सवाल ये है कि जो बीजेपी में हो रहा है, क्या वो मोदी को पता नहीं? यदि वो सारी चीज़ें मोदी जी के आशीर्वाद से ही हो रही हैं, तो फिर अन्नामलाई कैसे कि मुझे मोदी जी की नीतियाँ नहीं चाहिए, मोदी जी के विचार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ मोदी चाहिए। ये भी कहीं न कहीं एक कन्फ्यूज़न दिखता है। अब तमिलनाडु के राजनीति में एक और चीज़ है, वो है रजनीकांत फैक्टर। शुक्रवार को अन्नामलाई ने लाइव जाकर जनता के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा था कि रजनीकांत ने भी साथ आने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अन्नामलाई का कहना है कि उन्होंने सुपरस्टार को संकेत दे दिए हैं कि वह अपना राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने पार्टी का नाम ऐलान नहीं किया। गुरुवार को तमिलनाडु भाजपा प्रमुख नागेंद्र ने कहा कि अभी वो कुछ टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। अब वो भाजपा में कैसे आए, कौन लेके गया, क्या हो गया, ये सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारी है। लेकिन यहाँ मैं 2 चीज़ों को बहुत प्रमुखता से मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। पहला ये कि उन्होंने कहा कि मैं मोदी के प्रति आदर रखता हूँ। तो इसके मायने या तो ये है कि मोदी के प्रति आदर रखते हैं, लेकिन मोदी अब पार्टी में हाशिए पे चले गए हैं। जो भी पार्टी चला रहे हैं, वो लोग जिस हिसाब से पार्टी चला रहे हैं, वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मुझे वंशवाद नहीं चाहिए, तो इसका मतलब बीजेपी में वंशवाद वो मानते हैं। वो तमाम चीज़ें जो करना चाहते हैं, वो यदि बीजेपी में नहीं है, इसीलिए अलग हो गए, तो इसका मतलब बीजेपी में वो सारी कमियाँ हैं, जो बाकी राजनीतिक दलों में हैं। क्या अन्नामलाई ये रेखांकित करना चाहते हैं? दूसरी बड़ी बात, रजनीकांत का सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा के प्रति सारा तमिलनाडु जानता है। इसलिए रजनीकांत ये भी जानते हैं कि भाजपा का नाम लेते से ही तमिलनाडु में वो शून्य हो जाएंगे। इसलिए राजनीतिक पार्टी फ्लोट करने के बाद भी उसको लॉन्च नहीं कर पाए। ये रजनीकांत ने भी देख लिया, क्योंकि उसके पहले कमला हसन जो भी एक सुपरस्टार थे, उन्होंने एक राजनीतिक दल लॉन्च किया और वो हाशिए पे आ गए। उसको लेके रजनीकांत को कहीं ये लगता है कि कहीं वो ज़्यादा राजनीति में कूद-फाद करेंगे तो अपना जो फैन बेस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो क्या रजनीकांत अन्नामलाई के साथ आना चाहते हैं? तो रजनीकांत, अन्नामलाई और मोदी की अच्छाई, ये सब यदि इकट्ठा होते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अन्नामलाई का पार्टी छोड़ना, रजनीकांत से जोड़ना, अन्नामलाई का बार-बार ये कहना कि मेरे मोदी के प्रति मेरा आदर है, ये सारी बातें एक शंका को जन्म देती हैं। वो जो शंका है वो ये है कि कहीं बीजेपी का ही तो एक दूसरी रणनीति नहीं, डायरेक्ट जाने के बजाय कुछ ऐसा करके जाए कि बाद में हम कह सके कि हाँ, ये अपना है। देखते हैं धीरे-धीरे चीजें अनफोल्ड कैसी होती है। कम से कम एक्स-रे में आज उनका पूरा वक्तव्य देखने के बाद मोदी के प्रति आदर, भाजपा से अलग हो गए क्योंकि कुछ विचारधारा नहीं पटती। साथ ही साथ दूसरी तरफ से जो वो रजनीकांत का जो पत्ता उन्होंने फेंका, वो कहीं न कहीं फिर भाजपा की बैकडोर एंट्री तो नहीं, ये डाउट खड़ा करता है। समय बताएगा क्या होता है, लेकिन वर्तमान में तो बहुत सारे सवाल आज अन्नामलाई के वक्तव्य को लेकर थे। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।